Morning class 6, how are you all? I know you all are fit and you are curious to know what we are going to start up in the today's session. As you know that we are doing with the chapter number 3 and we are on the verge of ending the chapter. अब हम इस लाइन पर है कि अब हमें चैप्टर को एंड करना है, एक दो क्लासेस में हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा. तो अब हमने कितने सारे टॉपिक्स करे. We have done prime numbers, we have done factors, multiples, twin prime numbers. After that we have done a very broad topic, HCF, that is highest common factor, and you have to, and you know two methods right now how you can find out HCF: by prime factorization. Second method is by log division method. Now in today's class I have brought the next topic of your chapter, HCF and LCM. We are over with the HCF. Now we are going to start up with LCM. So in today's session we are going to do what is LCM and the examples based on it. So before starting the section I want to ask a question. Who is known as human calculator? Who is known as human calculator? So answer of this question you will get at the end of the video. Till then watch the video, watch the your LCM method and get answer at the last. Okay. So now students, as you know that we have to start up with the question number 9. So let's do it. There are three numbers over here. So what we have to do for finding the HCF, we will take two numbers for finding the HCF. Okay. Now students, 405 is greater, so you will write in the division sign, and 360 you will write over here. Now 360 into 1 will give you 360. Okay. 405 minus 360 you will get 45 as the answer. Now your remainder is not 0, so you have to extend this line and make a division sign over here. So this number it will come over here. Okay. Now students, 45 8 is 360. So 360 minus 360 will give you 0. Now here we have obtained 45. Okay, we have obtained 45. So what we have to do, we have to divide 45 with the last remaining number. If it will give you the 0, then yes, your number is divisible by your, then the number 45 is your HCF. So 495 over here and 45 over here. So 45 1 is 45. 49 minus 45 will give you 4 and this 5 will come down, and 45 1 again is 45 and your remainder is 0. So here the HCF of 360, 405 and 495 is equals to 45. Is the question is clear? Okay. So now here students, you can see that three numbers are given to you, 76, 113 and 186 in this question, and you have to find the greatest number. As you know that your greatest number is HCF and the remainders are 4, 5 and your 6. So as same we are doing, what we are going to do, we are going to write subtracting the remainders. Okay, subtracting the remainder, 76 is my first number, तो first remainder is 4, तो मैं 4 minus कर दूँगी. 76 minus 4 will give you 72. Similarly, your second number is 113 and your second remainder is 5. So we will subtract 113 and 5, we will get 108 as the answer. Now your last number is 186. So 186 minus your last remainder, and your last remainder is 6. So it will give you 180. Okay. Now we have three numbers, 72, 108 and 180. Now what we have to do, find HCF of 72, 108 and 180. If you look at these digits, your starting two digit is 72 and 108. So we are going to divide 108 and 72 for first. So write 108 in the division and write 72 over here. If you look at the
Look over here, 72 वन ज़ा इज 72, बिकॉज अगर आप 72 टू ज़ा करोगे तो ये आपकी 140 के अराउंड वैल्यू आएगी, तो हमें वो नहीं लेनी है. 8 माइनस 2 विल गिव यू 6 एंड 10 माइनस 7 विल गिव यू 3, तो हमारा आया 36. बट ये हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसलिए हमें डिवीजन यहाँ पर आगे एक्सटेंड करना होगा. दिस 72 विल कम ओवर हेयर. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स 36 टू ज़ा इज 72 and your remainder is 0. Okay, now our third number is 180 is left. So what we are going to do, we are going to divide 36 because हमारे रिमाइंडर से पहले 36 हमें मिल गया HCF, तो इससे भी हम डिवाइड करके चेक करेंगे. तो 180 को हमने 36 से डिवाइड करना है. तो 36 5 ज़ा क्या होता है बच्चे 180, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0. तो हमारे तीनों का HCF क्या होगा, तो हम लिखेंगे HCF of 72, 108 and 180 is 36. So now students, we are going to move on the concept of LCM. What is basically LCM students? As we have done HCF, we are going to do LCM. LCM. L stands for your least, C stands for your common, and M stands for your multiple. So what is least means बच्चे lowest. Lowest मतलब बहुत ही छोटा नंबर, छोटी कोई भी चीज़. least means कम basically. And what is common, like you have 2 Trimax pen and I am also having 2 Trimax pen, and you have having blue Trimax and red Trimax, and I am having blue Trimax and black Trimax. तो हम दोनों के बीच में क्या चीज़ कॉमन हुई, blue Trimax pen. तो दैट इज़ कॉमन जो दो लोगों के पास सेम हो या दो नंबर सेम हो बेसिकली. और मल्टीपल्स तो आपको पता ही है, जब हम 2 डिजिट्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे मल्टीपल बन जाते हैं. मल्टीपल्स आप कर चुके हो. तो लीस्ट एलसीएम को निकालने के 2 मेथड्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस क्लास. नंबर 1 इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, नंबर 1 इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड मेथड इज कॉमन डिवीजन मेथड. So बच्चे second method is common division methods. So these 2 methods we are going to learn in the today's class, and we are going to do the examples based on these 2 methods. Now students, I have taken example 7 from your book. Example 7 and example 8 are similar to each other. So I have taken one example, and the other example you can practice by yourself in the notebook. Find LCM of 4, 8 and 12. In the question, nothing is mentioned that you have to find the LCM by your prime factor or you have to find the LCM by your common division method. So simple method by which we can find the LCM is that write the multiples of your 4. जो पहला नंबर है हमारा 4 है, तो उसके मल्टीपल्स लिखिए. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 एंड सो ऑन. मैंने 48 तक लिखे क्योंकि मल्टीपल्स तो एस बहुत सारे हो सकते हैं. फिर उसके बाद मैंने लिखा है मल्टीपल ऑफ 8. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 एंड सो ऑन टिल 64 तक मैंने 8 के मल्टीपल्स लिखे हैं. देन उसके बाद आई हैव रिटन द मल्टीपल ऑफ 12. 12 24, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72 एंड सो ऑन टिल 96 मैंने लिखा है. अब बच्चे मैंने कॉमन मल्टीपल्स निकाले इन तीनों में से. 4 8 और 12 के मल्टीपल्स हो जाए, उनमें से कॉमन मल्टीपल एक तो मेरा आया 24. 24 4 के पास भी है. 24 इज विद योर 8 ऑल्सो एंड 24 इज विद योर 12 ऑल्सो. अनदर नंबर विच इज कॉमन 48 विद योर 4 ऑल्सो. Similarly 48 with your 8 also and 48 with your 12 also. तो 2 नंबर मैंने कॉमन निकाल लिए. तो हमारा एलसीएम क्या होगा बच्चे, एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर. तो हमारा सबसे छोटा नंबर जो होगा ना दैट इज 24, वही हमारा एलसीएम होगा तीनों डिजिट्स का. इज दैट क्लियर? So now students, we have to find the LCM of these 3 digits by prime factorization. So what is, how we are going to find? Make a line and cut it and write your first number 36 over here. 36 is an even number and it is divisible by 2. So when you divide 36 and 2 you will get 18.
ओके, राइट 18 ओवर हेयर। सिमिलरली 18 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। आपको इसी तरह से डिवीजन करना है, मैं और वीडियोस में भी आपको दिखा चुकी हूँ और क्लासेस में भी आपको पता है कि 2 9 इज 18। तो जो रिजल्ट आपका डिवाइड करके यहाँ ऑब्टेन्ड होगा, लाइक आपने 2 को 18 से डिवाइड कर दिया, तो वो रिजल्ट आपने यहाँ पर लिखना होता है। अब 9 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से। When you divide 9 and 3 you will get 3 as the result over here. Okay? जब आप 9 और 3 को डिवाइड करेंगे तो जैसे यहाँ पर हमें 9 मिला है वैसे ही आपको यहाँ पर 3 मिल जाएगा। So now 3 1 is what? Basically 3. So this is the first number. Now we have to find your prime factor of your second number, that is 72. Now student 72 is again divisible by 2. तो 72 को जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 36 ऐसा आंसर मिलेगा। अब 36 हमारा 2 से अगेन डिविजिबल होगा। सो नाउ स्टूडेंट्स 18 इज डिविजिबल बाय योर 2। सो व्हेन यू डिवाइड 18 एंड 2 यू विल गेट 9 एज द आंसर। 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? रिजल्ट 3। और 3 को 3 से डिवाइड करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा 1। सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू विद द 96। सो 96 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज लास्ट नंबर हमारा इवन है। तो 96 को मैंने 2 से डिवाइड करा, 2 4 इज 8, 9 minus 8 will give you 1 and this 6 will come down. So 2 8 is 16. Okay. So when you divide 96 and 2 you will get 48 as the answer. Now divide 48 by 2 again. You will get 24 over here as the answer. Now 24 अगेन हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है बिकॉज ये भी हमारा इवन नंबर है। तो जब आप 24 और 2 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 12। 12 को अगेन मैंने क्या करा है? 2 से डिवाइड करा तो आई विल गेट 6। अगेन 6 मेरा 2 से डिवाइड हो सकता है तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 3। 3 को मैं 3 से डिवाइड कर सकती हूँ तो यहाँ रिजल्ट आएगा 1। तो अब हमें क्या करना है? हमें लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। तो आप लिखिए यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। तो कैसे लिखते हैं? 2 into 2। सिमिलरली 3 is how many times? 2 times, तो 3 into 3। Again we will write prime factors of 72. This dash means the same word we have to write. Okay, 2 is multiplying how many times? 3 times. So write 2 into 2 by 3 times and 3 हमारा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 times. Similarly prime factors of 96, तो हमारे कितने हुए? 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4 5। So 2 is multiplying how many times? 2 is multiplying your 5 times and the last one is 3. तो write over here 3। तो अब हमें इसमें से कॉमन निकालना है। तो हमारा 2 यहाँ पर एक कॉमन हो गया, ठीक है, जो तीनों के पास आ रहा है। सेम यहाँ पर हमारा 2 कॉमन हुआ। तो अब आप देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही 3 जो है कॉमन हो रहा है कि नहीं है? बाकी तो और कुछ हो ही नहीं रहा। तो अब हमने क्या करना है? So students, as you can see that this number 2 is 3 times. So write 2 over here. Okay. Now similarly 2 is over how many times? 3 times. तो हम एक बार 2 लिखेंगे। हमारा जो LCM निकालने का मेथड होता है वो HCF से डिफरेंट होता है। अब आप यहाँ पर देखो, ये जो 2 है इसका थर्ड पेयर नहीं है, बट हम इसे एज अ 1 पेयर कंसीडर करेंगे। 2 हमारे 2 को, जो 2 यहाँ भी प्रेजेंट है और हमारा 2 यहाँ भी प्रेजेंट है, तो इसको भी आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, इनटू। अब जो मेरा 3 है इसका एक पेयर बन रहा है पूरा, जो मेरा 3 है वो 3 में कॉमन आ रहा है, 3 टाइम कॉमन आ रहा है, तो उसे हम एक बार लिखेंगे। अब आप देखो जो मेरा 3 है अगेन एक बार आ रहा है, मतलब एक बार 3 के साथ 36 के साथ आ रहा है और एक बार मेरा आ रहा है लास्ट में इसके साथ, तो 2 डिजिट्स का मेरा पेयर बन रहा है, तो अगेन मैं 3 लिखूंगी। अब क्या बच्चे रह गया मेरा? एक ये 2 रह गया। व्हाट इज लेफ्ट? दिस 2 into 2। इसको भी आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, यहाँ पर 3 नंबर कॉमन थे, उसको हमने लिखा। यहाँ पर अगेन मेरे 2 कॉमन थे, अगेन आई हैव रिटन। अब देखो जो 2 है उसका सिर्फ एक यही पेयर बन रहा है, मतलब 2 और 2 ये दोनों भी अपना पेयर बना रहे हैं। 3 के बाद हमें ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने जिनके 2 मतलब वो प्रेजेंट हो 2 नंबर्स में एटलीस्ट। जैसे 3 नंबर्स है ना, उसके 2 नंबर्स में एटलीस्ट वो प्रेजेंट। सो 2 के मैंने 1 2 और 3 यहाँ पर देखो 3 बार लिख दिया ना मल्टीप्लाई में। अब देखो जो 3 है हमारा एक बार 3 का पेयर बना रहा है और एक बार 2 का पेयर बना रहा है, तो हम 3 और 3 को एक एक बार लिखेंगे,
3 का, एक 3 का पेयर वाला भी लेंगे और 2 का पेयर वाला भी लेंगे 3। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया, देखो 2 और 2 रह गए, इसका कोई पेयर नहीं है तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे। तो जब आप इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 8 आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। सो व्हाट योर एलसीएम इज 288। जब आप इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 4, 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, अगेन यू विल मल्टीप्लाई 24 बाई और 3, और जो रिजल्ट निकल के आएगा उसकी 2 से 2 बार मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से फिर मल्टीप्लाई, तो आपका रिजल्ट आएगा 288। So now students, as you can look over here, LCM of 125, 350 and 425 we have to find by the common division method. So what is the common division method? Basically आपको common division method में क्या करना है, जो आपका numbers given है तीनों numbers को आपको एक साथ you have to write it together. Okay, so now look at the question. अब आपको ये चेक करना है कि कौन सा नंबर इन तीनों ही नंबर को डिवाइड कर सकता है। हमें ऐसा नंबर हमेशा सोचना होगा जो मैक्सिमम नंबर्स को डिवाइड कर पाए। तो यहाँ पर 5 मेरा निकल कर आता है कि जो मैक्सिमम नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, बिकॉज 5 की डिविजिबिलिटी अगर हम देखें तो लास्ट में 1 डिजिट पे या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, और तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अगर मैं 125 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो 5 2 is 10, 12 minus 10 will give you 2 and this 5 will come over here, and 5 5 is what students, 25. So result will be 0. So when you divide 25 and 5 you will get 25. Similarly I have did with the 350. अब आप 350 के लिए देखें, 350 को अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ, 5 7 से क्या होगा 35 और 0 आ गया, और ये जो 0 होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो जब मैंने 350 और 5 को डिवाइड किया I got 70 over here. Similarly I have divided 425 by 5. मैंने 5 से उसको डिवाइड किया तो मेरा रिजल्ट क्या आया, 5 8 is 40, 42 minus 40 will give you 8 and this 5 will come down. Okay, 42 minus 40 will give you 2 and this 5 will come down. Similarly 5 5 is 25, तो आपका रिजल्ट आएगा 0। तो यहाँ पर जब आपने 425 और 5 को डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 85। ओके, तो अब आप फिर से इन तीनों डिजिट्स को अगर आप देखो, लुक आफ्टर करो 25, 70 और 85 को, तो आपका क्या होगा, ये तीनों ही नंबर फिर से हमारे 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो मैं फिर से 5 यहाँ पर लिखूंगी और तीनों नंबर्स को जैसे मैंने ऊपर डिवाइड किया वैसे ही बारी बारी डिवाइड करूंगी। तो जब मैंने 25 और 5 को डिवाइड किया आई विल गॉट 5। जब मैंने 70 और 5 को डिवाइड किया तो मुझे मिला बेटा 14, और जब मैंने 85 और 5 को डिवाइड किया तो मुझे मिला 17। अब आप देखो यहाँ पर 14, 17 और 5 कोई भी एक टेबल से तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो अब हमें डिफरेंट टेबल से इसको डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले हम 5 के टेबल से इसको डिवाइड करके यहाँ 1 कर देंगे। 5 और 5 को डिवाइड करोगे तो 1 मिल जाएगा। अब 14 जो है मेरा 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 14 एज इट इज आएगा। सिमिलरली 17 मेरा 5 से डिविजिबल नहीं है तो 17 भी एज इट इज आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 14 ले लेंगे। अब बच्चे आप ये सोच रहे होंगे कि पहले तो मैम करा रही थी कि हमें प्राइम फैक्टर्स लेने, वो तब के पार्ट में लेना जब यहाँ लिखना हो प्राइम फैक्टर मेथड से आपको फाइंड आउट करना है। बट ये कॉमन डिवीजन मेथड है तो आप यहाँ 14 ले सकते हो। अगर आप 14 नहीं लोगे तो आपको यहाँ 7 भी लेना पड़ेगा और 2 भी लेना पड़ेगा, 2 डिजिट्स लेनी पड़ेगी 14 को 1 बनाने के लिए। तो हम सीधा ही 14 ले रहे हैं। जैसे ही 14 ये 1 है, इसका तो कुछ नहीं होगा तो इट विल गो एज इट इज। Similarly, when you divide 14 and 14, you will get 1. 17 is not divisible by your 14, so 17 you will write as it is. Now what is left? 17 is left, right? 17 over here. So 1 will come over here, 1 will come over here. When you divide 17 and 17, you will get 1. तो अब हमारा क्या है, LCM के मेथड आपकी प्राइम फैक्टर से इजी है। तो LCM of 125, 350 एंड 425 इज इक्वल्स टू, तो ये जो नंबर्स है ना यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 14 एंड इंटू 17। तो अब बच्चे क्या करना है हमने, देखो 5 5 का क्या होता है 25, 25 5 होता है 125, 125 की मल्टीप्लाई करोगे 14 से तो कुछ नंबर निकल के आएगा। जो नंबर आपका निकल के उसकी मल्टीप्लाई कर दो लास्ट 17 से, तो जो आपका रिजल्ट निकल के आया था वो था 29750। सो दिस इज द LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स।
let's move to the example 13. Example 12 is similar to example 11, so you are going to practice by yourself. सो 13 एग्जाम्पल हमें क्या कह रहे हैं, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालो. अब पहले जो क्वेश्चन आपने करे उस पर क्या निकालना होता है, ग्रेटेस्ट नंबर. बट अब जो क्वेश्चन है आपको निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर. यहाँ स्मॉलेस्ट से आप समझ जाइए कि मुझे एलसीएम निकालना है अब, और अगर ग्रेटेस्ट नंबर हो तो हमें एचसीएफ निकालना है. तो अब उसने कहा कि जब हम इन तीन नंबर्स को इस स्मॉलेस्ट नंबर से, जो अभी हमें नोन नहीं है, अभी हमारे लिए वो अननोन है, अगर हम वो उसे डिवाइड कर देते हैं इन तीनों नंबर्स को उस लीस्ट नंबर से, तो हमें रिमाइंडर 7 मिलेगा. जो हमारे पहले क्वेश्चन थे जो हमने एचसीएफ के लिए किए थे, उसमें आपने क्या किया था कि आपने रिमाइंडर को माइनस किया था. बट अब एलसीएम के केस में हमें ये नहीं करना. हमने सारे डिजिट्स का कॉमन डिवीजन मेथड से पहले तो एलसीएम निकालना है. तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, 6, 15 और 18. तो अब आप देखो 6, 15 और 18, मैक्सिमम कौन सा ऐसा नंबर है जिससे तीनों नंबर ही डिवाइड हो सकते हैं. कैन यू गेस? यस, योर फर्स्ट नंबर यू विल टेक इज 2. तो 6 और 2 को जब हम डिवाइड करेंगे, 2 3 इज 6, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट निकल के आया 3. सिमिलरली जो 15 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 15 यू विल राइट एज इट इज. और जब हम 18 और 2 को डिवाइड करेंगे ना, तो हमें 9 मिलेगा. अब आप देखो ये तीनों नंबर जो है एक ही टेबल में आ जाते हैं. वो टेबल कौन सा है, 3 का टेबल है. तो जब आप 3 और 3 को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 1. 15 और 3 को डिवाइड करा तो हमें क्या मिला, 15. 5 3 इज व्हाट, 15. तो जब आपने 15 और 3 को डिवाइड किया तो आपको रिजल्ट मिलेगा 5. और जब आप 9 और 3 को डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा बच्चे 3. ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू. अब आप यहाँ पर देखो एक नंबर हमारा 1 हो चुका है, बट बाकी दो नंबर्स अभी भी हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें उन्हें 1 में कन्वर्ट करना है. वी हैव टू कन्वर्ट देम 1 into 1. सो आई विल टेक 3 so that this smallest number will become 1. So 1 will come over here, 5 will come over here, and when you divide 3 and 3 you will get 1. Similarly now 5 is left over here, so write 5 over here. 1 divide 1 and 1. जब आप 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा. तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं एलसीएम ऑफ कौन कौन से नंबर थे हमारे, 6, 15, 18. तो इनका एलसीएम क्या हुआ बच्चे, 2 into 3 into this 3 into this 5. सो जब आपने मल्टीप्लाई की, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, और 18 5 ज़ा हमारा क्या होता है, 18 5 ज़ा क्या होता है, 19. Now students look over here. This is the number which is the LCM of the all three numbers. But हमें यहाँ पर वो smallest number निकालना है जिसे जब हम इन नंबर से डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर 7 लीव करेगा ही करेगा. For required number, for required smallest number, तो हम क्या करेंगे, for required smallest number what we are going to do, जो हमारा LCM आया 90, उसमें हम 7 को ऐड कर देंगे, तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो 97 होगा. क्योंकि क्वेश्चन का कह रहे हैं कि अगर हम इसे डिवाइड करते हैं इन नंबर से तो 7 हमारा रिमाइंडर लीव होगा ही होगा. तो रिमाइंडर तभी लीव हो सकता है जब आप रिमाइंडर को अपने एलसीएम में ऐड कर दो. ये जो क्वेश्चंस है वो एलसीएम के क्वेश्चन से डिफरेंट है. जब आपसे स्मॉलेस्ट नंबर कहे और कहा जाए कि रिमाइंडर इतना लीव कर रहा है तो आपको रिमाइंडर को इस टाइप से ऐड करना होगा. क्वेश्चन के पैटर्न को समझना, हर क्वेश्चन डिफरेंट बात कहेगा इस एलसीएम के टॉपिक में. ओके, इज दैट क्लियर? Students, it's time to give you the answer of the question which I have asked in the starting of the video, that who is known as the human calculator basically of the world. Who is the human calculator of the world? Scott Flansburgh. I repeat, Scott Flansburgh. He can do large number of calculation in just a fraction of second. He is still alive and born in the year 1963. Okay, thank you for watching the video. So whatever done in the class, you have to repeat and you have to practice at your home. Stay home, stay safe, and thank you for watching the video.